Today we are going to discuss our new topic in grammar. It's the tense. It comes after determiner according to your syllabus. So before starting the chapter or before starting the topic, I would like to give you some introduction or a small hint about what is tense and what are we going to discuss. Tense is such a topic that you must some of you must have been reading it since class 3 or 4, even from class 2 in some schools. So it actually gives you a sense of time. What is tense? Tense gives you the sense of time. When a sentence is spoken, then there are some indicators in it that suggests you that at what time the sentence is denoting or displaying. Okay? For example, I am studying. I am studying. I was studying. I shall be studying. ये तीन सेंटेंसेस हैं. इन तीनों में आप देखिएगा दो वर्ड कॉमन है, आई और स्टडी, आई और स्टडी, आई और स्टडी. बट पहले में एम बोले, दूसरे में वॉज बोले और तीसरे में शैल बी बोले. या आई शैल बी स्टडी. तो पहला जो एम था वो मार्क कर रहा था कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट. सेकंड में वॉज है, that suggests that the sentence has been written in past or the action which it is indicating has already been passed. And the third one is the sentence is talking about future, that I shall be studying in future. So let's get to our topic, tense. T-E-N-S-E, tense. It gives the time or sense of time in your sentences. तो कई बार डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि टेंस क्या है. टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ टाइम ऑफ द वर्ब व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में जो काम किया जा रहा है, जो वर्ब है, उसका टाइम ऑफ एक्शन इंडिकेट करता है टेंस. तो there are three kinds of tenses. The first one is present tense. Present tense means the markers. So present tense, it is a marker or it is the marker of the sentence that says that the verb which is there in the sentence is currently there or currently is going on. Present का मतलब होता है वर्तमान. अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, you are viewing or watching this video. This actually is an action which you are performing in present. Now the second one is past tense. Past tense indicates the sentences which or whose time has already passed or whose verb has already took place, जिनका क्रिया पूरा किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं, देन आप क्या कहेंगे? I have watched the complete video which gives you the introduction of tense. तो you have already watched. ये perfect का है लेकिन ये past के ही अंतर्गत आएगा सेंटेंस. I have watched. तो ये past tense है. उसके बाद होता है future tense. Future tense, the sentences or the verb which you believe that will come in future, जो भविष्य में होने की संभावना है, those are called as the sentences of future tense. एग्जाम्पल एक दिए हुए हैं,
प्रेजेंट टेंस आई एम स्टडीइंग, प्रेजेंट टेंस के लिए है आई एम स्टडीइंग। When this sentence is changed into past tense, what will happen? I was studying. मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था। And the last one is I shall be studying. मतलब am मार्क करता है प्रेजेंट के लिए, was मार्क करता है पास्ट को, shall be इस सेंटेंस के लिए मार्क कर रहा है फ्यूचर को। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं टेंस की, तो कितने तरह के टेंस सब डिवीजन हम लोग यूज करेंगे हर एक के लिए, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हर एक के लिए हम इतने सब डिविजन्स यूज करेंगे। द फर्स्ट वन व्हिच वी विल स्टडी इज इंडेफिनिट। ओके, ये तीनों में है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडेफिनाइट। उसके बाद जो अगला है वो होगा कंटिन्यूअस। तो इसका भी वही सेम एक्सप्लेनेशन है कि एनीथिंग that goes on। ओके, इसके लिए भी हम इसको भी हम तीनों में यूज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनाइट के लिए एग्जांपल्स हम लोग, कंटिन्यूअस का एग्जांपल ये हम लोग आगे देखते हैं, केवल अभी हम डिवीजन बता रहे हैं। अगला जो है वो है परफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट। सो this also has the same explanation or the same logic, that there are we will be studying perfect from three of the tenses: present perfect, past perfect and future perfect, and the last one that is perfect continuous. It's a perfect continuous. We will be studying present perfect, past perfect and future perfect continuous. Now there are some examples given in here for the indefinite. For example, I play. Okay, ये क्वेश्चन बहुत लोग आपसे बहुत आसानी से पूछ देते होंगे गांव में या कहीं पे भी, जो टेस्ट करना होता है कि बताओ मैं खेलता हूं को क्या बोलेंगे, तो I play। ठीक है, नेक्स्ट इज जब उसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट के हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो इंडेफिनाइट में आई प्ले होता है, जब उसको हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं। तो इंडेफिनाइट में यहां पर हो तो रहा है, लेकिन यहां पर हम केवल यही कह रहे हैं मैं खेलता हूं। दूसरा है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, यानी द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन और द वर्क स्टिल इज इन प्रोग्रेस। द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट। इसका होता है आई हैव प्लेड, मैंने खेल लिया है, मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुका हूं। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। और लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल है I have been playing, मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ। So these are the examples which indicate present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. These are all the positive sentences. Something is being done here. Positive sentences. अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा कि हम कितने kinds of sentences पढ़ेंगे. Kinds of sentences which we will be using in the tense demonstration in the coming classes. The first one is positive. Okay, positive means something is going on or something goes on in a positive sense. The next sentence is negative, in which
कोई चीज उसमें नहीं हो रहा है, ये इस तरह का होता है। The third one is इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क के बारे में कि कोई चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन अ सेंटेंस। एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वो बना हुआ है। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है जो पॉजिटिव सेंटेंस था, शी इज अ सिंगर, वो एक गायिका है। नेक्स्ट जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो शी इज नॉट अ सिंगर, वो गायिका नहीं है। बहुत सिंपल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि क्या वो सिंगर है, इज शी अ सिंगर, क्या वो एक गायिका है। और द लास्ट वन, क्या वो एक गायिका नहीं है, इज शी नॉट अ सिंगर, क्या वो गायिका नहीं है। यानी कि चार बहुत सिंपल है। पहला क्या वो गायिका है, दूसरा क्या वो पहला वो गायिका है, दूसरा वो गायिका नहीं है, तीसरा क्या वो गायिका है, और चौथा क्या वो गायिका नहीं है। These are the 4 kinds of sentences which we will be studying in our tense demonstrations. Okay, so this is for today. Thank you.